So what is the question? 176th question. Which of the following introduce the principle of constitutional autocracy? माने there will be a constitution, there will be a rule of law, but there will be an autocracy. माने the government will not work for the people. The government will work for itself, for the welfare of itself. So कौन से act से आया है principle of autocracy? 1935. 1935. And Nehru called this act as Nehru called this Government of India Act as Act of Slavery. Slavery Act. Act of Slavery माने perfect scheme for making Indians slaves. Slavery. Through constitution, through law, through act. ठीक है? Act of Slavery बोल के बता दे. Nehru called. Okay. Next 176th question. Who among the following does not take oath of the office? So कौन oath नहीं लेते? Speaker. Yes, speaker does not take Oath. oath. He is just selected. He just Yes. selected. Selected, प्रेसिडेंट का yes. ओथ कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 80. प्रेसिडेंट का ओथ कौन सा आर्टिकल में है मैम? आर्टिकल 62. The president oath is given in article number 62. I will defend. क्या है प्रेसिडेंट के ओथ में? Oath and affirmation by the president. आर्टिकल नंबर 60 दिख रहा स्क्रीन? Yes, sir. कौन सा आर्टिकल में है प्रेसिडेंट का ओथ? 60. 60 आर्टिकल नंबर 60. ठीक है. So someone wrote 62. Please correct yourself. It should be 60. Oath of affirmation of the president is given in article number 60. Preserve, Then protect, defend the constitution. preserve, protect and defend the constitution. Under article number 60. Vice president. President. Vice president का article क्या है constitution में? President का article क्या है? Vice president is 63. 69. Then oath 69. Yes. 69 is the oath of vice president. Prime minister is a minister. He is a minister under council of ministers and to advise the president. So next we are oaths of the members. Minister को अलग है. Secrecy का oath लेते minister. Speaker does not take oath. He is just selected by the house. Speaker is selected by the house. So 176 D. ठीक है? Next 177. 177. Petition to the Supreme Court under Article 35 are subject to the rule of res judicata except. Are subjected to the rule of res judicata. What is res judicata? पता नहीं. कौन काटते? What is res judicata? कुछ idea है? It is given in section. It is the concept of civil code, civil procedure code, CPC. Concept of civil procedure code. So I'll explain the concept of res judicata. 177 का ऑप्शन देख लो, क्या है ऑप्शंस? Certiorari, habeas corpus, prohibition, quo warranto. Habeas corpus. Habeas corpus क्या है? To bring the body. Yes. To prevent illegal detention. Detention. To prevent illegal detention. ठीक है? So res judicata लिख लीजिए. Res judicata is mentioned in section
CPC, Civil Procedure Code. Section 11 of Civil Procedure Code. Section 11 of CPC, Civil Procedure Code. Code CPC. 1908. Section 11 of Civil Procedure Code 1908. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक केस है, ठीक है, अगर कोई एक केस है और एक वो जो जज है, कोर्ट क्या करा, उसका जजमेंट सुना दिया, फिर वही केस लेके वही सेम जज के पास नहीं जा सकते। अच्छा। तो एक कोई केस है, कोई जजमेंट है, कोई जज है, वो जज वो केस के बारे में जजमेंट हो गया, फाइनल हो गया, फिर वही केस लेके वही कोर्ट के सामने नहीं जा सकते। अगर आप ट्रायल कोर्ट में है, यू आर इन द ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हो गया, गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट पे जाओ, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट पे जाओ जी। लेकिन वही केस वही कोर्ट के सामने नहीं जा सकते, एक बार फैसला हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा इन सिविल मैटर्स। लेकिन ये एक्सेप्शन है किसको? हेबियस कॉर्पस को, ठीक है। दिस रेस जुडिकाटा का एक्सेप्शन किसको है? हेबियस कॉर्पस। वही कोर्ट जी, हेबियस कॉर्पस को एक्सेप्शन है मतलब माने वही, अब नॉर्मल केसेस में वही एक बार फैसला हो गया समझो जी, तो फिर आप नहीं जा सकते हो कोर्ट के सामने वो केस ले लेके। लेकिन वो कोर्ट केस के बारे में कोई अगर जो लीडर है या कोई भी है केस से जुड़े हुआ आदमी जी, उन्हें किडनैप हो गया, इलीगल डिटेंशन हो गया, अच्छा, तो जब आप ये केस से रिलेटेड है, ये आदमी डिफेंडेंट था या प्लीडर था, कोई भी था, इन्हें अब इलीगल डिटेंशन हो गया, जरा देखो बोल के वही कोर्ट के सामने जा सकते हैं। ओके, रिलेटेड है बोल के, ठीक है। सर्शोरी में नहीं है, प्रोहिबिशन में नहीं जा सकते, कोवेरेंटो में नहीं जा सकते, बट हेबियस कॉर्पस में जा सकते, ठीक है। एक्सेप्शन टू रेस जुडिकाटा अंडर आर्टिकल 32 गिवन अंडर फॉर हेबियस कॉर्पस रिट्स। यस, नेक्स्ट समझ में आए? कहाँ है रेस जुडिकाटा? सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 178। Right to property was dropped from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act 1978. By 44th Amendment 1978 under Morarji Bhai Desai government. Yes. And was made Article 300 capital A बना दिए। What is the current position of fundamental legal right, property rights? Legal right. Legal right? Yes. Under 300A. 300 capital A. Yes. Part 12. Part 12. 12. Okay. Under finance property. Yes, financial relation between state and center. So, clear point. 44th Amendment से right to property fundamental rights निकाल के legal right बना दिए under 300 capital A. ये most common question है, बहुत बार आया। तो आंसर क्या होगा अपना? C. 179. Which of the following act introduced a separate electorate system in India? 1909. Communal electorate जी बोलते हैं इसको। Yes. Separate electorate system माने जो मुस्लिम्स वाले मुस्लिम को ही वोट दे सकते वैसा, माने अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की है तो मुस्लिम ही वोट दे सकते। यस। नॉन मुस्लिम्स ना ही उधर खड़े सकते, ना ही वोट दे सकते। दैट इज कम्युनल इलेक्टोरेट्स। माने माइनॉरिटी की आवाज पूरे को मार देने का, खत्म कर देने की ये प्रोविजन था, ठीक है। यस। Minto-Morley reforms is also known as Minto-Morley reforms. Yes, sir. Also known as Minto-Morley reforms. Okay.
Okay. Next. Which act is not the landmark in development of the constitution during British rule? ब्रिटिश रूल कब खत्म हो गई? पूरी complete 1947. 1947 में खत्म हो गई. हाँ. रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773. चार्टर एक्ट 1833. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ये सब ब्रिटिश रूल के अंदर आया था. Yes. ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कब आया? 1955. अब डेट देख के बोल सकते हैं. मालूम ही नहीं है तो यू कैन जस्ट सी द डेट. Yes sir. अपने को इंडिपेंडेंस कब मिली? 47. 1947. 47 में मिली. They got independence in 1947. 7. So what is the answer? 180 का D. D. Not पूछ रहा. Not a landmark. ये पूरे लैंडमार्क है. D वाला not a landmark. 180. Yes. D. ठीक है. Next. Excessive reservation would be fraud on the Constitution of India was observed by the Supreme Court in. माने excessive reservation. माने आप मेरिट को आप बहुत कम दे दे रहे. मेरिट को इम्पोर्टेंस ही नहीं है जैसा. अब आप कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सब के बेसिस पे अगर एक्सेसिव रिजर्वेशन दे दिए, विल बी द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन से केस में बताइए? 181 बी, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. याद रखिए, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट सेड excessive reservation would be fraud on the constitution. Next. Indian Constitution was prepared by Dr. B.R. Ambedkar. Indian Constitution was prepared by Dr. B.R. Ambedkar. तो सिंपल क्वेश्चन है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. 180 181 182 वाला है ना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was prepared by डॉक्टर आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन सही नहीं है बट फिर भी आंसर करेक्ट. इट्स नॉट ओनली अम्बेडकर. 7 जने थे इसके साथ. हाँ. It was not only Constitution Committee. It was the whole Constituent Assembly. Yes sir. Indian Constitution was prepared by Constituent Assembly बोल सकते हैं. Yes sir. Prepared by Constitution Committee, drafting committee, approved by Constituent Assembly. Yes sir. क्वेश्चन सही फ्रेम नहीं करे. Okay. Next. The term district judge is mentioned in which of the following article of the Constitution? The term district judge is mentioned in which of the following Constitution? Article 233. Yeah. Article 233. Appointment of district judges. Appointment of district judges. दिख रहा है इधर? Yes sir. High Court judges. High Court 214. Supreme Court 124. High Court 214. District judges 233. Sir और एक बार बोलिए ना. Supreme Court 124. Okay. High Court 214. 12 को इंटरचेंज कर दो. Yes. District Court District judges 233. Sorry. District Judges 233. 233. ठीक है. Yes sir. 233. D option. Next. When a court declared certain provisions on an act invalid, it does not affect the validity of the entire act according to Doctrine of severability. Doctrine of severability. What is sever? Sever किसको बोले? ये कानून है. ठीक है. दिख रहा स्क्रीन? जी. ये कानून है. इसमें से क्या करे? थोड़ा हिस्सा काट दिए. थोड़ा हिस्सा कट कर दिए. जी. इतना हिस्सा कट कर दिए.
तो ये इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल के दिखा दिए, तो बाकी पूरा हिस्सा तो है बचे हुआ। जी फॉर एग्जाम्पल अगर अगर अपना कोई भी एक हाथ या पैर खराब हो गया, ठीक है, जी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर अभी हाथ या पैर पे ऑपरेट नहीं करे तो जान चले जाती, जी अगर अभी ऑपरेट कर दिया तो जान बच जाती। क्या चूज करते हैं आप? विच ऑप्शन यू विल बी चूजिंग? हाथ को कट कर देते हैं, उतना जितना खराब है, बाकी का जान बच जाती। तो बॉडी तो वैसी रहती, जान तो बच जाती। यस। वैसे अगर कोई कानून है, जी वैसे कोई अगर कानून है, उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज करे जुडिशियल रिव्यू में, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखता? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच बैठते, जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये देखते कि क्या ये पूरे का पूरा कानून खराब है या थोड़ा नहीं, हिस्सा खराब है। तो ये थोड़ा हिस्सा खराब। थोड़ा हिस्सा खराब है तो क्या बोलते हैं, इसको निकाल दो आप। अच्छा। तो पूरा कानून बचा लेते, पूरा कानून वो नहीं करते। जी when a court declared certain provision of acts invalid, ये invalid है, it does not affect the validity of the entire act। वो कौन से एक्ट से आ रहा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर, सेवर माने सेवरेबिलिटी। कट करना। सेवर ओके। माने फैंसी इस्तेमाल करे कभी, हाँ। एक कट करते आप कोने जी कट करते पेपर के गोल बनाने के जी वास्ते, जी डिजाइनिंग के लिए, उसको बोलते हैं सेवरेबिलिटी। जी। ठीक है। एक डॉक्ट्रिन रहता, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। व्हाट इज एक्लिप्स? ओके। एक्लिप्स क्या है? हाफ निकाल लेना। एक्लिप्स, एक्लिप्स कहाँ है? ये कानून है, जी। ठीक है। अब ये कानून के ऊपर क्या करा इधर में? दूसरा कानून लाए। ये आर्टिकल 13 है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कानून निकाल दो। पूरे का पूरा कानून कट कर दिए, एक्लिप्स कर दिया, माने कानून के ऊपर पूरा पूरा पर्दा आ गया, पूरा वेस्ट, पूरा जी क्या पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ओके। पूरे का पूरा छुपा देना हो चीज को। ओके। सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स होता, यस। सूरज के पूरे का पूरा क्या आ जाता, पूरा अंधेरा हो जाता, यस सर। माने पूरे के पूरे एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता। यस सर। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग किसको बोलते हैं? डॉक्ट्रिन माने, चेंजेस। डॉक्ट्रिन माने रूल, रूल। डॉक्ट्रिन माने रूल। रूल। किसको बोल रहे हैं? माने आज आज कोई लॉ पास करे, वो कल से स्टार्ट होने वाला है बोलते हैं, ठीक है, पीछे से इफेक्ट नहीं देते। यस। समझ में आ रहा? तो यस सर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये अगर आपको मैं बताया, इफ आई गिव एन एग्जांपल, शेड्यूल 9 कब ऐड करे थे? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के सर। 1951 में ऐड करे थे, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद एक केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, यस। मिनर्वा मिल्क मिल्स केस। केस हुआ था। ये कब हुआ? 1980 में हुआ, मिनर्वा मिल्स केस ओके। 1980 में हुआ। ओके। अब ये केस में सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि 1973 से पहले हम कोई भी जो भी एक्ट, अब क्या करे, उठा रहे थे 9 शेड्यूल में डाल दे रहे थे, यस। जुडिशरी नहीं देख सकते बोल के। यस। 1980 में 1980 में ये केस चैलेंज हुआ था। 1970 सुप्रीम कोर्ट ये बताया 1973 के पीछे जितने भी एक्ट्स 9 शेड्यूल में डाले वो हम नहीं देखेंगे, वो नहीं देखते। लेकिन 973 के बाद जो भी एक्ट डाले ना, 1973 में कौन सा केस आया था? केशव भारती केस आया था। यस। तो इसके इफेक्ट से क्या बोले, 1973 से पहले जो भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाले, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स बोल के, जुडिशरी से प्रोटेक्शन बोल के, वो हम नहीं देखेंगे, उसकी उसके उसके टच भी नहीं करते। लेकिन 1973 के बाद जो भी एक्ट डाले वो जुडिशियल रिव्यू को ओपन रहते बोल के बताया, अंडर आर्टिकल 13। यस।
तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रूल इस्तेमाल करा इधर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, माने कल से लागू होने वाले चीज जो पहले से इफेक्ट नहीं रहता किसका भी उसका। ठीक है, अगर एक लॉ बनाए उसमें लिखे हुआ है आज पास करे, दिस लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 3 months फ्रॉम नाउ बोल के, अगस्त से पास होने वाला है बोल के। बजट आते चीजा, बजट कब प्रेजेंट होता? बजट की डेट क्या है प्रेजेंट होने की? मार्च। कब बजट होता? बजट एनीवन? पूरे एजुकेटेड लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए बस, एजुकेटेड इंटेलिजेंट होशियार होनार। बजट कब आता? कोई था फाइनेंस मिनिस्टर? 5th निर्मला 1 फरवरी 2015 से 1 फरवरी को स्टार्ट करे बजट। 1 फरवरी नहीं तो 2015 से पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी देते थे, लास्ट डे ऑफ फरवरी 2015 से पहले। 2015 से क्या करे, 1 फरवरी को देना स्टार्ट करे बजट, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। समझा रहा? बजट आर्टिकल नंबर 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। कब देते हैं बजट? 1 फरवरी। 1 फरवरी 1 फरवरी में अनाउंस करके बोलते कि ये जो भी अनाउंसमेंट हुआ 1 अप्रैल से स्टार्ट होने, 1 अप्रैल से अप्लाई होगा बोल के बताते। अपना फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता। ओके, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स विद 1 अप्रैल। फरवरी में अनाउंस करके बोलते 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा बोल के। तो ये कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ इधर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। ठीक है, ओके, आज ऐलान करके कल से इफेक्ट में लाना, इन्होंने प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। अगर कोई भी एक्ट को थोड़ा कट कर दे के पूरे एक्ट को बचा ले तो कौन सा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल हो रहा? डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी। पूरे का पूरा एक्लिप्स हो गया तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग किसको बोलते हैं? आज बोल के कल से आज शुरू बोल के बाद में शुरू करना। आज बोल के जैसा फेल हुए तो देखो बोल के एग्जाम से पहले दे देते। अगर फेल हुए सब्जेक्ट गया, बेल्ट रेडी लकड़ी रेडी। खाए माना कभी? ऐसा हुआ कभी प्रोस्पेक्टिव रूलिंग में घर में? नो, नहीं हुआ सर। वार्निंग दे के मारते, खाने का कभी मारा? वार्निंग के बाद भी नहीं सुने तो क्या करते? तो क्या है, कौन सा रूलिंग इस्तेमाल हो? ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग माना है। क्या? नेक्स्ट Literal meaning of लोकपाल is लोकपाल। लोक लोक माने और ने लोक, लोक माने क्या, पाल माने क्या? और इस लोकपाल, लोक माने क्या? लोक माने पीपल, लोकसभा। पाल माने केयरटेकर, जो अपना ख्याल रखते। तो लोकपाल माने केयरटेकर। केयरटेकर ऑफ द पीपल। केयरटेकर ऑफ द पीपल। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन आ सकता। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? Who is the first local of India? Who is the present local of India? पिनाकी चंद्रा घोष। याद लिख लो, नोट बना रहे आप लोग। पीसी घोष याद रखो, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया।
पीसी घोष, पीसी घोष। करंट लोकपाल ऑफ इंडिया प्रदीप कुमार मोहंती। 2023 में कौन है? पी के मोहंती। पहले कौन है? पीसी घोष। अब कौन है? पी के मोहंती। मोहंती। प्रदीप कुमार मोहन सिंह। प्रदीप कुमार मोहंती है, मोहंती। सी। ओके। प्रदीप कुमार मोहंती और पी के मोहंती। ये पिनाकी चंद्र घोष, प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है। लोकपाल वर्ड आया कहां से? कौन से कंट्री से लिए ये लोकपाल वर्ड? कौन से यूरोपियन कंट्री है? जल्दी, कौन से कंट्री से लिए लोकपाल? यूके, यूएस, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन। मेरे स्वीडन। पास इतने अच्छे आइडिया नहीं आते। स्वीडन से लिए ये लोकपाल वर्ड। क्या है? स्वीडन से आया। इसको बोलते हैं स्वीडन में, इसको क्या बोलते हैं? ऑम्बड्समैन। ओम्बड्समैन माने जो करप्शन से रोकता, इसको बोलते हैं ombudsman. Sweden has this the word lokpal means ombudsman. Ombudsman taken from the word Sweden. इंडिया में लोकपाल का क्या स्टेटस है पूछा था? कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है? इंडिया में लोकपाल स्टैट्यूटरी है, माने कानून से लाए इसको। अन्ना आंदोलन 2014-13 में लोकपाल आंदोलन से आए थे। स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसका लोकपाल का। तो क्या क्या याद रखना है आपको? व्हाट इज लोकपाल? केयरटेकर ऑफ पीपल। केयरटेकर ऑफ पीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन। कहां से लिए? कौन से कंट्री से लिए? स्वीडन से लिए। स्वीडन से लिए। इंडिया में लोकपाल का स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है और एग्जीक्यूटिव है। स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी। हु इज द प्रेजेंट लोकपाल? पी के मोहंती। इज द फर्स्ट लोकपाल? घोष। फर्स्ट लोकपाल घोष। केसी घोष। लोकपाल का स्लोगन क्या है इंडिया में? पता नहीं। क्या है लोकपाल का स्लोगन इंडिया में? डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ। दूसरों की जायदाद पे नजर नहीं करना, नहीं डालना। समझ रहा? क्या है स्लोगन? Do not greedy for डू नॉट बी ग्रीडी फॉर anyone's for anyone's wealth. समझ आ रहा? क्या है ये? व्हाट इज स्लोगन फॉर टू इंडिया लोकपाल? do not be greedy for anyone's wealth। माने अपना अपन देखो। ठीक है। दूसरों के प्रॉपर्टी पे नजर नहीं रखना। ओके, नेक्स्ट 186। क्या है आंसर? केयरटेकर ऑफ द पीपल। 186। When was the national manufacturing policy released by Government of India? Government of India. When was the national manufacturing policy released by Government of India? कब लॉन्च करे? When is the launch? 25th December 2011। नो, 2011 तो है, बट डेट करो। नवंबर। 4 नवंबर 2011।
रिपोर्ट नंबर 2011, ये 2016 में आया था, तो 16 के हिसाब से लेटेस्ट ही 2011। ठीक है, अब लेटेस्ट अगर पूछा उन्हें, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नवंबर 4 2011, अभी भी लेटेस्ट वही है। ये कौन इशू करता? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एनएमपी कौन इशू करते? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ Industrial policy. DIPP, सॉरी DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल Industrial पॉलिसी एंड policy. प्रमोशन, अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो याद रखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब इशू हुआ? आज भी यही चल रहा, 4 नवंबर 2011। Department of Industrial Policy. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, and Promotion. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट 187, Which of the following article of Indian Constitution mention the doctrine of pleasure? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब मर्जी, प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, प्रेसिडेंट की मर्जी, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट की मर्जी। आर्टिकल नंबर 310, चेक आर्टिकल नंबर 310। टेन्यूर ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, ये क्या है? टेन्यूर ऑफ पर्सन, वे किसके मर्जी, किसके तहत रहता है? प्रेसिडेंट के तहत रहता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 310। Which of the following president was एक मिनट, टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन है इधर। Yes, तो कौन से आर्टिकल में है? 310. 310 में है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 310। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following president was appeared before Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of the president? सो कौन सा प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जब डिस्प्यूट, प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट चल रहा था इलेक्शन का? VV Giri. देखिए, क्या है कि मैंने 188, 188, यस, वीवी गिरी, 188 वीवी गिरी। तो जब प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट चला तो प्रेसिडेंट came into the Supreme Court and gave his arguments, ठीक है, gave his side। याद रखिए, वीवी गिरी, सिटिंग प्रेसिडेंट, came to Supreme Court। ठीक है, नेक्स्ट 189, the tenure of Lok Sabha, the tenure of which Lok Sabha was about 6 years. टेन्यूर ऑफ लोकसभा और 6 ईयर्स। इंडिया में सिर्फ एक ही बार इमरजेंसी आई, वो एक ही बार में इमरजेंसी में 5 साल की जगह 6 साल लोकसभा चला। और वो कौन सा लोकसभा था? अब कौन सा 7. लोकसभा चल रहा? 15th.
Present is 17th Lok Sabha. 17. Present is 17th Lok 17. Sabha. So पहला लोक सभा कब से कब तक? 51 से 56 तक. 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शंस हुए, 51 में इलेक्शंस हुए, 51 से 56 तक पहला लोकसभा. सेकंड लोकसभा 60. 60 से 65. Fifth Lok Sabha. अगर इलेक्शंस होना था 75 में, बट इमरजेंसी कब लॉन्च हुई, कब रिलीज हुई इमरजेंसी? 75. 25. So which Lok Sabha? 189, 1, 2, 3, 4, 5. So 75 में इमरजेंसी आ गई. Yes. तो फिफ्थ लोकसभा में, फिफ्थ लोकसभा का टेन्योर 76 तक चलेगा. Okay. 77 में इमरजेंसी हटी, फिर इलेक्शंस हुआ, इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शन. Yes. ठीक है. तो फिफ्थ लोकसभा इज द राइट आंसर. ठीक है. ये इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था. 190. Which of the following Constitution Amendment Act provide for goods and service tax? तो कौन सा अमेंडमेंट है? 2000. 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. Yes. याद रखिए, जीएसटी 101 अमेंडमेंट 2016. 191. Who recommends to the governor the principle which should govern the distribution between the state and the panchayat of the net proceeds of the taxes and fees leviable by the state, which may be divided between them? स्टेट फाइनेंस कमीशन. क्या है? गवर्नर. गवर्नर को रिकमेंड कौन करते? गवर्नर कौन से लेवल पे हो गया? स्टेट लेवल हो गया. State level पे हो जाए. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसा फाइनेंस कमीशन सेंट्रल का फाइनेंस कमीशन है 280 में, जी. जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता, जी. डेवोल्यूशन ऑफ जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी आता, Yes sir. सेंटर टू स्टेट्स, सेंटर टू स्टेट, State. इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन. Yes. इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन. फिर स्टेट्स टू स्टेट्स. अब देखिए 100 रुपीज में 40 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेके 60 स्टेट्स को दी समझो. तो अपने पास कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है. Yes. तो 60 रुपए हुए 28 स्टेट्स में बांटना है आप. ये सेंटर टू स्टेट्स और स्टेट्स टू स्टेट्स, ये क्या है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर दिया हुआ है. द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द प्रेसिडेंट एट सेंट्रल लेवल. वैसे क्या है? स्टेट से पंचायत को जाता, तो कौन Yes. देंगे रिपोर्ट? State Finance Commission. स्टेट फाइनेंस कमीशन. ठीक है. गवर्नर, गवर्नर याद है, गवर्नर इज ऑलवेज एट स्टेट लेवल, बिटवीन Yes. स्टेट एंड पंचायत. स्टेट फाइनेंस कमीशन. Panchayat. 191 सी. 192. Who was the first woman to become the Chief Election Commissioner of India? Who was the first woman to become the Chief Election Commissioner of India? Yes, Ramadevi. Ramadevi. Okay. Yes, Ramadevi. Ramadevi. First woman to become a Chief Election Commissioner of India, Ramadevi. This याद रखिए. Yes, sir. मेरे को याद नहीं था. तो 192 का Chief Election Commissioner of India is first woman to become Chief Election Commissioner of India, Ramadevi. ठीक है. 192 सी.
Next. An advocate may be specified by the state government for the purpose of conducting of cases in human rights courts as special public prosecutor who has been in practice for not less than 7 साल. 7 years. आपको आप एडवोकेट है, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है. पीपी, Okay. एसपीपी 3 रहते. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है माने गवर्नमेंट का वकील. अच्छा. गवर्नमेंट का वकील. तो कौन है ये? कितने साल का एक्सपीरियंस रहना? 7 years का. 7 साल. जज बनना वाले 3 साल, एडवोकेट बनना वाले तो 7 साल. डिफरेंस देख लो, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कितना है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना बोले तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना? 7 years. 7 साल का एक्सपीरियंस होना. नेक्स्ट 194. The chairperson and member of the State Human Rights Commission are appointed by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. 194. एक मिनट. क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? chairperson and member of the State Human Rights स्टेट Commission. पूछ रहा. Yes, स्टेट माने गवर्नर, governor. नेशनल माने प्रेसिडेंट. Yes, sir. If it is national, it will be president. Yes, But he is asking the state, so it is Yes. governor. governor. Next. Who is 195. the not who is not a member of the committee constituted by recommendation of appointment of chairperson and other members of the National Human Rights Commission. Not a member. Not a member. ह्यूमन राइट्स कमेटी में कोई मेंबर नहीं रह सकता. कौन नहीं रह सकता? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. विधान परिषद बोलते हैं. विधानसभा इज लोक असेंबली. विधान परिषद इज काउंसिल ऑफ स्टेट. और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा चेयरमैन. Yes, sir. Rajya Sabha. अपर हाउस वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ Human Rights Commission. कमिटी. कमिटी बनाते चेयर. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन और अदर मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए एक हाई पावर कमेटी रहती. जी. वो हाई पावर कमेटी में तीनों रहते. कौन कौन रहते? प्राइम मिनिस्टर रहता, लीडर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल Speaker. एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल. लेकिन कौन नहीं रहते? Vice President. राज्यसभा member. चेयरमैन. काउंसिल ऑफ Yes. स्टेट माने राज्यसभा. Yes. वाइस प्रेसिडेंट doesn't have any place. Next 196. When the court under Section 12 of the Protection of Civil Rights Act 1955 shall pursue that the offence is committed on the ground of untouchability. अब जो देखिए, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 17? Abolition of untouchability. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. लेकिन सिर्फ आर्टिकल रखने से फायदा नहीं होता ना. वो आर्टिकल को इफेक्ट देने के वास्ते एक कानून लाते. प्रोसीजर कानून. क्या क्या करे तो क्या सजा मिलती बोल के. Okay. अब जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में सेक्शन 12, अगर उसमें क्राइम हुआ और कमिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए अपने पास. Yes, sir. अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ओनली. याद रखिए. अनटचेबिलिटी एसटी में नहीं आता, ओबीसी में नहीं आता. अनटचेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं. ST में आता है. Okay. याद रखिए. सेक्शन 12. Okay. आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बन रहे. यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट. ये गलती कभी भी नहीं करना. कभी किसी से कास्ट नहीं पूछना. अच्छा. यू आर बिकमिंग गवर्नमेंट सर्वेंट. कोई भी ऑफिसर बन गए आप, चाहे कुछ भी रहने दो, कोई भी केस रहने दो, कभी भी ओपनली आपका कास्ट क्या बोल के नहीं पूछना. डाल लेते हैं सेक्शन में.
या तो ये इसमें चले आते, या तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में है, बेल भी नहीं मिलती, कड़क कानून है। हैव यू सीन आर्टिकल 17 मूवी? No. आर्टिकल 17 नहीं देखे? हम्म। कोई किसी मालूम है आर्टिकल 17 मूवी है बोल के? Never. देखो यूट्यूब पे बहुत जबरदस्त, क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी में यूट्यूब पे आर्टिकल 17। I'll just show you the trailer now। टाइम पास बाद में जाकर पूरी मूवी देखो। SC/ST जो एक्ट है उसके ऊपर बेस है ये। Okay. नेक्स्ट 197। Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? Offenses under Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Prevention of Atrocities Act and committed by the एट्रोसिटीज atrocities माने जुल्म, एट्रोसिटीज माने जुल्म। zulm, are committed by a person who is not a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe. क्या मतलब इसका? व्हाट इज द मीनिंग? इनकरेक्ट पूछ रहा हूं मैं। इनकरेक्ट माने 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, तो पहला क्या है? ऑफेंसेस अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी बताया आपको मैं, ये 1989 में आया, याद रखिए। कब आया ये? 1989 में आया। साल पूछ ले सकता हूँ मैं लॉसेट में या नॉर्मली ग्रुप्स एग्जाम में। SC/ST एक्ट कब आया? 1989 में। अब इसमें SC/ST के प्रिवेंशन के लिए दिस एक्ट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST। अब SC/ST पे कौन, व्हाट यू कैन से, हु विल बी द कल्प्रिट, हु विल, लॉ कौन तोड़ते? जो SC/ST नहीं है। So this statement is right। वो उसके लिए अलग लॉस है, बट स्पेसिफिकली इसमें लॉ कौन तोड़ने वाले हैं? जो इज नॉट ए मेंबर ऑफ SC/ST। SC and ST. बी वाला पढ़ो। B. Exclusive special court established under Section 14, Clause 1 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act is defined under Section 2, Clause D. This is wrong। This is सेक्शन रॉन्ग दिया हुआ है उसमें, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। डिपेंडेंट किसको बोलते? जिसके कोई हुआ, एट्रोसिटीज हुआ, उसके डायरेक्टली लोग जो डिपेंड है उनको बोलते हैं डिपेंडेंट्स, ठीक है। विक्टिम भी करेक्ट है। और एक चीज याद रखो, विक्टिम किधर डिफाइंड है? ये तो एक डिफाइंड है अंडर सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और एक जगह विक्टिम पूछ सकता हूं मैं, 2 क्लॉज WA ऑफ CRPC, 2 क्लॉज WA ऑफ CRPC 1973। विक्टिम का डेफिनेशन और किधर है? जिसपे जुल्म हुआ, किधर है? एक तो 2 EC ऑफ SC/ST प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किधर है? कौन सा डेफिनेशन में है? 2 clause WA of CRPC 1973. याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली के LLB जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रुप्स के हैं, उन लोगों को याद रखना जरूरी है, वैसे तो मुश्किल बात। नेक्स्ट। Which of the following amendment act of the Constitution deleted the right to property
from the list of fundamental right. So बोलिए आंसर 44th Amendment सा Act. अमेंडमेंट एक्ट है जो डिलीट करा राइट टू फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी? 44th Amendment Act 1978. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. Yes. ठीक है, नेक्स्ट 99. If any person refuses admission to any person to any hospital, dispensary of or educational institution on the ground of untouchability, then under which section of the Protection of Civil Rights Act 1955 he shall be punishable? अब देखो इसका ये सेक्शन ना इम्पोर्टेंट है, यही सेम का सेक्शन क्या है, देखो ऊपर पढ़े थे जी. अगर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स सेक्शन नंबर 12 किसके बारे में है? एससी के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में जी. और ये क्या पूछ रहा क्वेश्चन उन्हें? अनटचेबिलिटी. अगर कोई भी अनटचेबिलिटी हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश करे तो कौन से सेक्शन के तहत उसको बुक करते? पनिश कर सकते. 199 का ऑप्शन क्या है? बी, सेक्शन 5. सेक्शन 5 सेक्शन 5 के तहत untouchability in hospitals, dispensary and educational institution is declared illegal and invalid. ठीक है, next 200. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 came into force on. एक ये दो डेट रहते, देखिए डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ एनफोर्समेंट. केम इनटू फोर्स माने एनफोर्समेंट कब आया, कौन सी तारीख को आया? 30 जनवरी 1990. पास हुआ पार्लियामेंट से 1989 में, बट इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी. What is the speciality of 30 January? Why 30 January was chosen? Martyrs Day. Martyrs Day, assassination of Mahatma Gandhi. Yes. He was one of the social reformer who talked for SC/ST. ठीक है, तो 30th डे याद रखिए, 30th जनवरी 1990. 89 में पास हुआ बिल और 30 जनवरी को इफेक्ट में आया 201. The parliamentary system of government is one in which आवाज कमा रिशाद. the parliamentary system of government is one in which इंडिया की गवर्नमेंट क्या है? इंडिया गवर्नमेंट इज parliamentary form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने Government responsible for parliament. गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट अंडर आर्टिकल नंबर 70. देखिए ये आपको पहले समझाया मेरे ख्याल से. आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3. The Council of Ministers shall be collective responsible to the House of People. इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौन सा आर्टिकल में है? Article 75 clause 3. आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है. माने रेस्पॉन्सिबिलिटी. अपने पास दो ऑप्शंस थे, एक तो स्टेबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेबिलिटी की जरूरत, वी डिड नॉट सेलेक्ट स्टेबिलिटी, वी सेलेक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. 75 क्लॉज 3 रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. Yes. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट 202. Untouchability is abolished and its practice in punishable accordance to Article 17. आर्टिकल 17. 202 आर्टिकल 17. 18 क्या है? Abolition of titles. 16 क्या है? Employment के बेस पे no discrimination. 15 क्या है? Prohibition of no discrimination on base of religion, caste, gender. RRCS. Yes. Race, religion, caste, sex, date of birth and place of birth.
Yes. Okay. Untouchability abolished under article number 17. 203. Article 14 grantees equalities before law and equal protection of law 2. So article All number 14 guarantees equality before law and equal protection of law 2. किसके लिए? all persons living within the territory. All persons living within the territory of India. अगर कोई भी आने दो, चाहे अमेरिका आने दो, कोई भी आने दो, अगर कोई भी आदमी इंडिया के जमीन पे आ गया तो उसको आर्टिकल नंबर 14 गारंटीड है राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी. समझ में आ रहा? Yes, sir. आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ लीगली आए तो. ठीक है. नेक्स्ट 204. Who among the following can establish additional court for better administration of any existing law with respect to a matter concerned in union list? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सा आर्टिकल में है? 7th. आर्टिकल 246 7th शेड्यूल. आर्टिकल 246 7th शेड्यूल. अगर आपको मालूम है यूनियन लिस्ट में जो भी एंट्रीज है उसका पूरा राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के पास. अगर पार्लियामेंट चाहे तो और कोर्ट्स एस्टैब्लिश करके जल्द से जल्द केसेस को डिस्पोज कर देता. ठीक है. नेक्स्ट 205. PCMA 2006 is a abbreviated version of और क्या है? Prohibition of Child Marriage. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. ठीक है. 18 से पहले अगर शादी कर रहे बच्ची की तो कौन से कानून में, कौन सा कानून रोकता वो चीज? PCMA. PCMA एक्ट ऑफ PCM एक्ट ऑफ 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 206. According to Indian Constitution, the state legislature elect the मेंबर्स ऑफ Rajya Sabha. राज्यसभा. आप ही पूछे थे क्वेश्चन में. Yes, sir. लोकसभा और असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस होते. हाँ. लोकसभा और असेंबली में Direct election. डायरेक्ट इलेक्शंस होते, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते. राज्यसभा के मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करते? अपन असेंबली में सेलेक्ट करते. वी सेलेक्ट फॉर Assemblies वाले. हाँ. वी सेलेक्ट फॉर असेंबली. असेंबली वाले राज्यसभा के मेंबर्स को सेलेक्ट करते. वो राज्यसभा के मेंबर्स कौन रहते? वो लोग भी एमएलए से रहते हैं कि एमएलए नहीं, अलग लोग रहते, नॉमिनेट होते. अलग रहते? अच्छा. मतलब नॉमिनेट होते. कहाँ से? 6 साल पार्टी से. जो एमएलए है वो एमपी नहीं रह सकता? नहीं रह सकता. अगर एमएलए और एमपी के लिए दोनों के लिए खड़े हुआ है तो एक सीट को दे देना पड़ता. अच्छा. एमएलए एमपी अगर दोनों के लिए खड़े हुआ है तो एक सीट को दे देना पड़ेगा. किधर लिखे हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है. कौन सा आर्टिकल में लिखे हुआ है? और देखो आर्टिकल नंबर लोकसभा किधर है? 81. आर्टिकल 81. एप्लीकेशन स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल लिखे हुआ है, क्लियर कट लिखे हुआ है. जनरल चेयरमैन ऑफ एजुकेशन. फोर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन. बाद में हाउस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. वेकेशन ऑफ द रेजिग्नेशन लास्ट में है.
वेकेशन ऑफ सीट्स 101 में देखिए क्या है 101 में, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एक आदमी लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का एमपी एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, बट उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर का अगर एमएलए रहा तो वैसा बोल सबर रहे हैं हम सबर उसको एमपी। सबर हाँ, सबर provision shall be made by the parliament by law हम्म, and vacation by person who chosen member of both house in one house of the other। माने एक से रेजिग्नेशन दे देना पड़ता उसको। ठीक है, कानून के हिसाब से। जी। अब आपका क्वेश्चन किस में है, ये है, पढ़िए। No person shall be a member of both of parliament and of a house of a legislature of the state. माने असेंबली। Yes. if If a, mm, if a person is chosen a member both of parliament and the house of the legislature state, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by a president, that person's seat parliament shall become a vacant unless he has previously resigned his seat and legislature of the state. अच्छा, मतलब क्या बता रहा हूं उन्हें, अगर एक एमपी भी है एमएलए भी, दोनों भी, हाँ, अगर उन्हें टाइम पीरियड के अंदर कुछ भी नहीं बताया, उन्हें डिसाइड नहीं कर सका तो कि ना प्रेसिडेंट उधर भी दिल है इधर भी दिल है, जी दोनों दो नहीं रह सकते, दोनों जी के उसमें नहीं रह सकते आप। तो जी अगर उन्हें कुछ भी नहीं बताया स्पेसिफिकली तो जी ऑटोमेटिकली कौन सी सीट खाली हो जाती। स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर अरे, कौन सी द तो अभी एक पर्सन सीट सीट खाली इन हो जाती है पार्लियामेंट राहुल। शैल बिकम वेकेंट, पूरा पढ़ेगा ना फिर गलत बोलते। अच्छा, एंड पढ़ना सही कंसंट्रेशन से, मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, देन एट द एक्सपिरेशन ऑफ सच पीरियड मेड बाय द रूल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट पर्सन सीट इन पार्लियामेंट शैल बिकम वेकेंट। अगर एमएलए भी है एमपी भी है, तो अगर उन्हें टाइम के लिहाज से उन्हें अपना चॉइस नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली कौन सी सीट खत्म हो जाती, पार्लियामेंट से खत्म हुआ था। पार्लियामेंट की सीट खत्म होती, उन्हें एमएलए ही रहता। यस। ठीक है, अगर अगर एमएलए ये टाइम पीरियड से पहले एमएलए का रेजिग्नेशन दे दिया उन्हें एज एन एमएलए, देन ही विल रिमेन एन एमपी। समझ आ रहा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जरा देख समझ के पढ़ना, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब ये पढ़ाते हुए जाते हैं आप नेक्स्ट, सबको भी ये डायलॉग ये क्लियर करते डाउट, ये दिमाग में चलते रहता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, मीनिंग बदल जाते। नेक्स्ट 207 पढ़िए। in how many days will the investigation officer submit his report for the offences committed under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989? अगर आप कंप्लेंट करें तो कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाना, कितने दिन के अंदर होना, 207 के तहत आंसर इज 30 डेज, एक महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, Article मेरे पॉइंट 155. Yes, sir. आर्टिकल 155 and 156 of the Constitution सर वो deals फिर with से एक बार रिपीट करेंगे सर वो क्वेश्चन governor. 207। Governor. ये देख लो Yes. क्वेश्चन 155 और 156 किसके बारे में है, Appointment of governor, office of governor, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, term and office of governor. ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के बारे में 207 क्या है, इन हाउ मेनी डेज will the investigating officer submit his report
फॉर द ऑफेंसेस। आर्टिकल 15 का ट्रेलर देखे Yes. अभी जो चलाए थे, जो जी हीरो है कौन है वो? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जी तो अगर SC/ST के एक्ट में कंप्लेंट आया तो 30 दिन के अंदर उसको छानबीन करके Right रिपोर्ट करना है। सबमिट कर देना Yes. बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। 30 days। नेक्स्ट 209। What is the correct about the powers of Zilla Panchayat of scheduled areas? व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ जिला Zilla पंचायत Panchayat of scheduled areas ऑफ शेड्यूल एरियाज? to plan minor water bodies, to control over institution in all social sector, to control on tribal subplans, all of the above. तो क्या है? All of the 209 क्वेश्चन का आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। minor water bodies to control the institutions, social sectors, Right. to control the tribal subplans. So all of the above Right. comes under Zilla Panchayats. Come. Next to 10. Which of this house is presided over by non-member? Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha, all of above. Non-member, वो Non-member मेंबर हाउस मतलब का मेंबर नहीं रहते भी डिसाइड करने वाला है। कौन से बॉडी में होता? क्या? किसको बोलते सर? राज्यसभा। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। Which of this house is presided over by a non-member? Which of the house decided by a non-member बोल रहा हूँ। हाउस का हेड वो घर का मेंबर नहीं होता। लोकसभा में कौन हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? Speaker. Speaker is member of the house, so A is not the option. Rajya Sabha, Vice Vice President. President. Vice President is not the member of the upper house, but he presides Yes. it. Is the ex Yes. officio chairman of Vice Rajya Sabha. President. Yes. विधान सभा is assembly. असेंबली में भी कौन रहते? स्पीकर रहते। तो ये नहीं होता, तो ऑल द अबव भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज B. बी। Okay. ठीक है, Yes, sir. नॉन मेंबर। नेक्स्ट 2011 2 11। Under Article 321 of the Constitution, the power to extend function of the Union Public Service Commission has been vested in the आर्टिकल 321 क्या है? आर्टिकल 321 UPSC. 320 फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। 221 क्या है? 321 Powers of power to UPSC. extend functions of public service commission, act made Parliament. of the parliament, additional functions of UPSC, Okay. act made legislature of any state may provide the exercise of additional functions of UPSC or the state public service respect of services of union and state. तो किसको दे रहे? additional Parliament. responsibility Parliament. under article 321 of the constitution. The power to extend functions of union public service commission has been vested in आर्टिकल से क्या समझ में आ रहा? Parliament के Parliament. पास है. Yes, sir. पार्लियामेंट के पास पावर्स है। Yes. एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट Which provision of the Constitution provides for the adjudication of the disputes relating to waters of interstate rivers? एग्जीक्यूटिंग टू वाटर ऑफ द इंटरस्टेट रिवर। आर्टिकल नंबर 262 पढ़ो। Adjudication of disputes relating to water of interstate rivers and river valleys. comes under which article? Article 262.
Article 262. 262. Adjudication of waters for interstate rivers. Kaveri water dispute है, Yes, sir. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, गंगा वाटर डिस्प्यूट. इसके अंदर कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है ये? 262. 262. Next 213. The doctrine of prospective overruling was first evolved by Justice Subbarao in Justice, yes sir. The prospective overruling किसको बोलते हैं? आज डिसाइड करके कल से फॉलो करना. बाद में आज डिसाइड करके कल से फॉलो करना. और वो Yes. कौन दिए? सुब्बाराव. Who gave the judgment? Who gave this doctrine? केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. कौन सा जजमेंट? कौन सा जज? सुब्बाराव. जस्टिस सुब्बाराव. कौन से जजमेंट में? गोलकनाथ के. जस्टिस सुब्बाराव इन गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब. तो कौन दिया ये? prospective overruling. Who gave this prospective overruling? जस्टिस सुब्बाराव. जस्टिस सुब्बाराव. कौन से केस में? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब. स्टेट ऑफ पंजाब. नेक्स्ट 214. 214. A change in distribution of powers between center and state can be done by Can be done by state themselves amending the constitution, none of you. amending the constitution. Yes. Under article 368. Article 368. Eight. Part 20. Part 20. Article 368. Next 15. The constitution reserves the residuary power in the parliament. In the parliament. Under article number कौन सा आर्टिकल है रेसिडुअरी पावर्स का? आप जब पढ़ा था तो बोले थे रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट है तो आर्टिकल ही बताया था. आर्टिकल 13 भी बोले थे. वो वैसा याद रखना, भूल जाते आर्टिकल हैं. याद नहीं है. 248. ओके 248. क्या है आर्टिकल 248? Residuary powers of legislation. पढ़ो. Subject to Article 246A, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. तो कोई भी रेसिडुअरी पावर्स क्या है? Matters which are not mentioned in the concurrent list or State list. state list. तो जो भी बचे हुए मैटर्स रहते हैं हम लोग को रेसिडुअरी लिस्ट बोलते हैं. रेसिडुअरी आइटम्स बोलते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पढ़ो. The constitutional provision relevant for solving question of repugnancy between the central law and state law is found in रिपग्नेंसी माने डेडलॉक. deadlock. माने रिपग्नेंसी माने क्लैश होना. Constitutional provision relating to solving question of repugnancy between central law and state law is found in which article? Article 254. Article B है उसका आंसर. Parliament. Parliament under 248. Parliament under 248.
248. नेक्स्ट इसका आंसर क्या है 216 का? देखो अगर रिपग्नेंसी आई माने दोनों के बीच में झगड़ा हो गया सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में, सो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है जो उसको सॉल्यूशन दे रहा? आर्टिकल 254. इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, और सुप्रीम कोर्ट वाला ये बता दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ लॉ बना हुआ है तो सेंट्रल लॉ पार्लियामेंट का बना हुआ लॉ अपहोल्ड होता बोलिए, ठीक है जी। नेक्स्ट 217. A retired judge of High Court cannot practice. अगर एक रिटायर्ड जज है कैनॉट प्रैक्टिस माने ए जज रिटायर हो गए बाद में भी आप एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन किधर नहीं कर सकते? रिटायर्ड जज किधर प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज एन एडवोकेट? नहीं मालूम सर। जो हाईकोर्ट से रिटायर हुए और जो हाईकोर्ट में काम करे वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हैदराबाद हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट से रिटायर हुए तो तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्यों? मैं तो पूरे एक जो भी नेक्स्ट आते रहते एक जमाने में उनके हाथ में काम करे हुए ठीक है इन्फ्लुएंस पूरे जूनियर्स रहते जी। तो जहां उन्हें प्रैक्टिस करे और जहां से वो रिटायरमेंट हुआ, समझ में आ रहा? नेक्स्ट या ये लोअर कोर्ट या फिर अपर कोर्ट में कर सकते हैं सर? यस कैन गो इन एनी कोर्ट except the person who the place where he has practiced, the high court where he has practiced or served. Next, Which article lays down that the law declared by the Supreme Court would be binding on the court in India? आर्टिकल नंबर 141 माने सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया पूरे जितने भी कोर्ट्स है पूरों पे बाइंडिंग रहेगा वो. बाइंडिंग माने मानना ही मानना है, यू कैन नॉट से आई डोंट एक्सेप्ट बोल के. अगर बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता. व्हाट इज आर्टिकल 141 पढ़ो. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. बाइंडिंग ऑन All all courts. courts starting from उसकी क्या बोलते हैं from itself till the last subordinate courts. Okay. 141. 142 extraordinary power of the Supreme Court. That's 142 extraordinary power of the Supreme Court. 143 advisory jurisdiction. yes. आज क्लास में बताया था ऑफलाइन में जो आए मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताया था. नेक्स्ट 219. The jurisdiction of the Supreme Court may be enlarged by Parliament. एनलार्ज बाय jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का दायरा कौन बढ़ा सकते? पार्लियामेंट ऑफ बाय लॉ. Law. सर जो ऑफलाइन आए थे आप जो आर्टिकल्स बोले लोगों को एक बार शेयर कर सकते, क्या पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं सर यहाँ पे ग्रुप में? लिख लिए कौन कौन है और कोई ऑफलाइन ऐसा है क्लास में आज ऑनलाइन में? एनीवन? नो वन. देखनी वाला क्लास है तो नूरा थे शायद ना क्लास में. वेयर इज नूरा? नेक्स्ट 220. The fundamental rights under Article 12 to 15. कैन बी अमेंडेड. 12 to Only? 35. जी 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है. Yes, sir. बारह से 35 लास्ट दिख रहा.
फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 12 से 35, 14 से बोलते 12 से स्टार्ट है सर बाउंड्री। नेक्स्ट, Yes, sir. The president nominate Anglo-Indians member to the Lok Sabha. 2. द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा 2, बट अब नहीं है। Yes, sir. दिस हैज बीन रिपील्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। Amendment Act 2019. पहले दो थे, दो एंग्लो इंडियंस को कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, Yes. 222, The quorum retirement in the Rajya Sabha is इन द राज्यसभा 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 250. तो 126 होता है. 10% ऑफ 250 इज 25. 25। अगर लोकसभा का पूछते तो 26. 55 होता। लोकसभा पूछे तो 55। 10% रहता कोरम, माने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू बी प्रेजेंट फॉर कैरिंग आउट वर्क, ठीक है। 2 2 2, राज्यसभा 25, लोकसभा 55। नेक्स्ट, A person can be a member of the Council of Ministers without being a member of Parliament for the maximum period. for 6 months, can be a minister without being an MP for a period of 6 months. 6 महीने तक बिना MP रहे मेंबर रह सकते, ठीक है। मिनिस्टर रह सकते, विदाउट मेंबर रहे मिनिस्टर रह सकते। कब तक? 6 महीने 6 तक। months. उसके बाद में इलेक्ट हो जाना होगा कोई भी घर से। 224, The legislative council in the state can be abolished by the parliament on the recommendation of तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा आर्टिकल में है? एबॉलिशन एंड क्रिएशन, पढ़े थे 2 दिन पहले। अगला था पिछला सवाल, क्या है? आर्टिकल 169। abolition or creation of legislative council in state. 60. If the legislative council, if the legislative assembly of the state passes a resolution with a type of majority of total membership of the assembly and by majority not less than 2/3 of the members of the assembly and voting, तो कौन रिकमेंड करना? Legislative assembly. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल होना है, विधान परिषद होना है बोल के रेजोल्यूशन पास करना, जी. वो पार्लियामेंट को भेजाते हैं, फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है। 224A। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 169। आर्टिकल नंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का आर्टिकल क्या है? 169. 169। And abolition of yes, sir. 225, Decision regarding disqualification of member of Lok Sabha are taken by the स्पीकर। 225 क्या है? स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी इन द डिस्क्वालिफिकेशन केस, ठीक है। तो कहाँ कौन सा से स्टार्ट करें अपन? टुडे वी स्टार्टेड विथ विच नंबर? 176. 176। कितने हो गए? 172 225 हो गए ना। तो वी हैव डन 50 MCQs, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, we'll have a class till 4. Next, Any sum required to satisfy any judgment, decree or award of the court or arbitral tribunal shall be charged on तो कोई भी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री, कोई भी जजमेंट है, कोर्ट क्या है? फाइन लगाया। कोर्ट क्या है? विक्टिम कंपेंसेशन में गवर्नमेंट को बताया कि भाई इसको ये विक्टिम को इतने पैसे दियो,
तो पैसे किधर से निकाल के देना और कौन देना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के देना। Parliament. क्या Parliament. आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का? 266. 266. 6. नेक्स्ट, Which of the following statement about money bill is correct? which of the following statement about money bill is correct? मनी बिल क्या है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट मनी बिल? 110. 110 talks about money bill. 114 appropriation bill. Appropriation. 113 estimates. 112 annual financial statement. 111 assent to bills. प्रेसिडेंट के सामने रखना पहले। Yes. फिर 110 मनी बिल। 110 मनी बिल। सो क्या बता रहा है 227 का? The speaker of the Lok Sabha finally decides the money bill or not. The speaker is the final authority in case of money bill and in case of disqualification of its members, house members. ठीक है? Okay. Next, 28. In which of the following cases has the Supreme Court ruled that the reason have to be communicated to the legislature by the government if the advice of Public Service Commission has not been accepted? तो क्या है इसका काम? क्या है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का? कि एडवाइस देना गवर्नमेंट को। वो बाइंडिंग नहीं रहती, लेकिन एडवाइस दिए बाद में उस कई को फॉलो नहीं करे बोल के रीजन देना पड़ता गवर्नमेंट को हाउस में। वो कौन से केस में बताया? इन विच केस? जयशंकर परिषद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एडवाइस दिए बाद में पहले तो पूछते, फिर एडवाइस दिए बाद में कई को फॉलो नहीं करे बोल के रीजन देना पड़ता। बाइंडिंग नहीं है, बट यू हैव टू गिव द रीजंस। नेक्स्ट, Dispute between state in India comes to the Supreme Court under its original jurisdiction. Yes, sir. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कौन सा आर्टिकल में है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 131. Original jurisdiction is under article number 131. 131. अपीलेट jurisdiction कौन सा आर्टिकल में है? 133. Appellate jurisdiction is under article 133. और advisory jurisdiction 143. Advisory jurisdiction 143. power of the president to consult the Supreme Court. Yes. 143 is known as advisory jurisdiction. Next, 230. Doctrine of pleasure was introduced. ये कर लिया अपन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? We have seen the first or second question today. Yes, sir. मर्जी का रूल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 310। आर्टिकल नंबर 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, Pleasure. आर्टिकल नंबर 310। नेक्स्ट 231. Which provision of the Constitution gives the governor of the state power to grant pardon in certain cases? तो ग्रैंड पार्डन इन माने माफ कर देना कौन से आर्टिकल में है गवर्नर के लिए? गवर्नर का आर्टिकल क्या है? गवर्नर रहना बोल के कौन सा आर्टिकल में बताता? 155. 155। तो पहले गवर्नर रहना बोल के आर्टिकल 155 में दिखा था, उसके बाद ही चाहेगा ना। Yes. So let us see आर्टिकल नंबर 153 बता रहा है कि गवर्नर रहना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155।
तो उसके बाद में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, माने माफी दे देना, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। कौन सा आर्टिकल में है? 161। 161. Okay. सर प्रेसिडेंट के जैसा गवर्नर भी मतलब माफी दे सकते हैं? यस, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल। नेक्स्ट 232। Article 227 of the Indian Constitution deals with आर्टिकल 227 क्या है? 226 हाई कोर्ट के बारे में, तो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट ही छूंगा वो। तो अंदाजा करेक्ट है नहीं है, देख लो। तो 226 हाई कोर्ट के बारे में। कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है वो? आर्टिकल 227. power of the superintendence of all courts, superintendence Yes. over all courts by the high courts, subordinate Yes. courts जो भी रहते किसके अंदर आते? हाई कोर्ट के हाई अंदर कोर्ट आते। के अंदर आते। तो तुक्का सही गया। नेक्स्ट, What can be the maximum interval between two sessions of each house of the parliament? तो 3. maximum interval between two houses of the parliament, Yes. not more than बोल के लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, not more than 6 months। Yes, sir. दो सेशंस के बीच में not more than 6 months। ठीक है, तो ये प्रोविजन के हिसाब से साल में 3 बार मिलते हैं, वन बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। Winter session. 234। What cannot be done directly cannot be done indirectly. This statement epitomizes the doctrine of कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन 234B। क्या मतलब इसका? नहीं समझ में आया सर। What cannot be done directly cannot be done indirectly, मतलब टू 32 का आंसर क्या है? A. High Court powers of superintendence. हाई कोर्ट पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट, आर्टिकल नंबर 227 ऑप्शन ए। 227. ये कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है बोले तो, आपको अपना काम निकालना है घर का, घर में, लेकिन वो काम थोड़ा बहुत गलत ही है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिए। पहले किसके पास जाते घर में काम निकालना रहे तो? मम्मी। ओके, अब वालदा नो बोले तो फादर के पास जाते। फिर वाली साहब के पास जाते। वाली साहब बोल दिए जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते, बोले तो क्या हो गया वो? Colourable legislation. कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, गलत मतलब- वो गलत है, वो गलत है, दैट्स ऑल। Yes. मतलब जो मम्मी परमिशन नहीं दे डाले वो मैं भी नहीं देता हूँ बोले था सर। यस, डायरेक्टली मैं परमिशन नहीं मिला तो मैं कैसा मिला परमिशन? समझ में आ रहा? जो काम गलत है वो गलत है। Yes. ठीक है, जो बोर्ड के ऊपर से चीटिंग नहीं मार सकते वो माइक्रो शेड्यूल से भी नहीं मार सकते। समझ में आ रहा? नेक्स्ट 235। Which of the following provision in Part 3rd of the Constitution automatically becomes suspend on the proclamation of emergency? कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी आते कि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता, सस्पेंड हो जाता? 14, 19. 19, Okay. 20 एंड 21 कभी भी खत्म नहीं होता, Yes. बट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हो बिकम्स सस्पेंडेड, माने एनफोर्समेंट खत्म हो जाता। Yes. आर्टिकल को नहीं निकाल देते, एनफोर्समेंट खत्म हो जाता उसका। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। A legislation enacted by the state legislature fall in category of legislation. Supreme.
लेजिस्लेशन इनएक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर माने असेंबली जो बना है, ऑटोनोमस माने इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन। इंडिया में कोई भी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माने आप अपना काम दूसरों को दे दे रहे, अपना अपना काम बांट दे रहे, उसको तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसा एमपीस किसको दे रहे काम? ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे। सबऑर्डिनेट माने आपसे जो रैंक कम है उन लोगों को अगर काम दे रहे तो सबऑर्डिनेट काम बोलते। सुप्रीम माने अपने अपने एरिया में लॉ बना ले रहे तो उसको बोलते सुप्रीम लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट। आंसर डी है ना सर? Yes. यस, आंसर इज डी। Both parliament and state legislature can legislate on. कौन से टॉपिक पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं? कौन से लिस्ट में रहना वो? कॉन्करेंट। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर कॉन्करेंट में है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट में है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट भी। तो ऑल द अबव, इट्स ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट। Who has the power to dissolve the House of People? ओनली प्रेसिडेंट। Who can declare financial emergency in India? प्रेसिडेंट। India will celebrate its 70th Constitution Day. कब मनाते? कब मनाए? कब मनाए थे? कब मनाए थे? 2020 में क्वेश्चन पूछा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है आंसर? 2020, 19. करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता, या तो वो साल का हो जाता या तो इससे पहले का होता। 2019 में, 2020, 2000 प्रोबेबिलिटी ए और डी, तो करेक्ट आंसर इज डी, 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी के कल 250 तक करेंगे। Okay. जल्दी। Which of the following is not true? Parliament has exclusive power to make law on any matter in the union list. ट्रू। Parliament and state legislature have power to make law on any matter in concurrent list. ट्रू। In certain exceptional circumstances, state legislature can make law on the subject given in union list. नो, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे बना सकता, स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट पे नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। उल्टा हो गया था। Parliament can make law on subject in state list in certain circumstances. तो पार्लियामेंट बना सकता, Yes, true. बट स्टेट C के पास wrong. हो। आंसर इज सी, सी इज रॉन्ग देयर। Yes, नेक्स्ट, sir. 242। Which of the following act introduced bicameral legislature at the central level? एट द 1935. सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1919 से प्रोविंसेस में आया, Yes, sir. 1935 से सेंट्रल में आया। Central में आया. The Next. Council of Ministers at the Union remain in office as long as it enjoy the confidence of Lok Sabha. लोकसभा, आर्टिकल 375, आर्टिकल 75 क्लॉज 75. क्या है? Three. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 3. हाँ, 3. 75 clause 3. 3 से आर्टिकल 75 clause 3. क्लॉज 3 है, रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। Lok- नेक्स्ट, 244। Which one of the following statement about the Union Executive in India is correct? इस करेक्ट पूछ रहा हूं मैं, तो Yes. क्या करेक्ट है? According to the Constitution of India, the total number of member of Council of Minister cannot be exceed 20% of total number of member of House of the People. ये 10%, 10%. ये 15%, सॉरी 15% है। Raju sir, Second. 10%. The rank of the different minister is determined by the president. There is no ranking in ministers. The Next. ministers are appointed by the president on the advice of prime minister. Yes, it is correct.
Only a member of either House of Parliament can be appointed as the minister. कोई भी घर से आ सकता है. Minister can become from any house. कोई particular वो नहीं. तो 3 A, B, D wrong है, C correct. Next to 45. The union government can assign any function to the state. Any function to the state. State. With the consent of the state government. Okay. ठीक है. गवर्नमेंट को देना है, कोई भी स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तो किसकी रजामंदी से? स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से. नेक्स्ट. राज्यसभा कैन withhold money bill for a period of only 14 days, not more than 14 days. 246 A. What is 247? An appeal under scheduled caste, scheduled tribes shall lie from any judgment, sentence, order to the High Court in how many days? Or what should be the consideration? Both on facts and on law. मतलब कोई एक छोटा कोर्ट सजा सुना दिया, तो हाई कोर्ट में जाने के लिए कौन से बेसिस पे जा सकते? बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे जा सकते, बेस्ड ऑन लॉ पे भी जा सकते. व्हाट इज ऑफिशियल नेम ऑफ जीएसटी बिल? जीएसटी बिल का ऑफिशियल नेम क्या है? जीएसटी बिल का ऑफिशियल नेम है द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014. नेक्स्ट 249. Sir, 248 answer. सी द कॉन्स्टिट्यूशन जी 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे, एक्ट 101, बट बिल 122nd. बिल आया तो 122nd 2014, एक्ट आया तो 101 2016. जी. 249. ये जो बिल आए थे 2014 में ला लिए थे, बट पास हुआ 2016 में. 249. Which one of the following sets of bill is presented to the parliament along with the budget? बजट के साथ और क्या अटैच करके देते? फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल नंबर 114 के साथ, आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 114. अप्रोप्रिएशन बिल इज 114. फाइनेंस बिल मनी बिल के अंदर ही आ जाता, आर्टिकल 110 के अंदर. ठीक है. लास्ट, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन विच पार्ट? तो बोलो आंसर. फंडामेंटल राइट्स कौन से उसमें है? कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 1. पार्ट 3. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के उसमें है. ठीक है. So by this we complete 250 bits today. We will continue tomorrow.